मतलब उनको एक्चुअली यही डर होता है टियर 3 कॉलेज होने की वजह से कि क्या मुझे जॉब मिलेगी एंड इवन आई मिलेगी वाज़ या गुड इन एवरीथिंग, स्टिल आई हैड दैट फियर। मतलब ऐसा होता था कि मैं लिंक्डइन पे स्क्रॉल करती थी, लोगों को बढ़िया अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे थे। आई वाज़ लाइक कि ये कैसे मिलता है? फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या है लोग कि हाँ. उनको इतना बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Riddhi with us. So Riddhi, would you like to introduce yourself once? Yeah, sure. Like, thanks, Ashish, for giving me this opportunity. So, myself, Riddhi Nilawar, and currently I'm working as an SDE1 at Microsoft. Yeah. Yeah. So we'll be getting to know her entire journey to Microsoft, like what all she did, how did she prepare, and everything in between. So Riddhi, would you like to start us off with a journey of your career, like what all company have you worked at and when? Sure. So, like, I will start from my engineering. So, I had completed my engineering in computer science from GHI Sony Pune. Okay. And during my college days only, like I was a good student. I was in fact topper of the batch. I Oh, scored nice. 9.75 CGPA. So this helped me a lot actually in my career. That like when I was attending all the classes and it helped me to clear the interview somehow because I could able to good at core concepts. And then later Hmm. I had got some 8 offers probably after completing my graduation. But my college was tier 3, so you can know what the Hmm. what Yeah. all 8 offers I can get probably. So they Hmm. were not that good, but yeah, at least I have good number of offers. So I choose to go with Hitachi. And in Hitachi, I did 6 months internship prior to my full-time job during fourth year's last semester. And after that, I was there within Hitachi for approximately 2 years. Hmm. And during this time only, I prepared DSA quite good and shifted to Microsoft. Nice, nice. And one point that you said, I would like to talk more about it because I've also seen this happening with other people also. If you're good with college studies, अगर आप कॉलेज में ध्यान देते हो तो आपको इंटरव्यू के वक्त सीएस फंडामेंटल्स में कोई इश्यू नहीं होता है क्योंकि आपके सीएस Exactly. फंडामेंटल्स कवर हो जाते हैं कॉलेज स्टडीज Because के साथ. same thing happened with me. Like Microsoft asked me a lot of operating system questions, and usually we like focus majorly on system design and DSA. People don't focus on operating system or any other fundamental subject basically. But as I was good in college and I used to attend most of the lectures, so I don't need to keep a lot of efforts to get that things up and revise again when I was preparing for interview. एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप 6 महीने के लिए कुछ पढ़ रहे हो, एक सेमेस्टर का आपका वो सब्जेक्ट है और अगर आपको पता है चीज़ें सो यू कुड एटलीस्ट समव्हाट रिलेट एंड आंसर एटलीस्ट समथिंग इन द इंटरव्यू। यस, थोड़ी प्रोफिशिएंसी आ जाती है कॉलेज स्टडीज के साथ ही, है ना? राइट, राइट. तो वाइल इन कॉलेज, लाइक व्हेन डिड यू एग्जैक्टली स्टार्ट कोडिंग, मतलब सीरियसली? Actually, I was good at coding during my college, but I was unaware of all these things कि लीड कोड होता है, लिंक्डइन होता है और लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में जाने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। सो आई वाज़ टोटली अनश्योर कि कॉलेज में क्या करना है। आई वाज़ यूज्ड टू फोकस कि हाँ, मतलब सब बोलते थे कि अगर सीजीपीए अच्छा है तो अच्छी कंपनी आएगी, अच्छे कंपनी में जाओगे। बट इट्स लाइक अगर टायर 3 है तो कितनी भी अच्छी हो उसका एक लेवल होगा, उससे अच्छी तो नहीं कंपनियाँ। सो इट्स लाइक अगर आप कॉलेज और कॉलेज के सीजीपीए पे डिपेंड करते हो तो आप बेस्ट कंपनी उस कॉलेज में आने वाली तो क्रैक कर लोगे फॉर श्योर। बट अगर आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज चाहिए है देन आई थिंक कि आपको थोड़ा डीएसए साइड जाना पड़ेगा जो कि मुझे बहुत लेट पता चला। लाइक वंस आई फिनिश माय ग्रेजुएशन देन आई स्लोली लाइक समहाउ आई बिकेम एक्टिव ऑन लिंक्डइन लेटर एंड फिर मेरे को लाइक इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, डीएसए करना पड़ता है एंड after my graduation, I started doing DS. वाओ, तो मतलब यू स्टार्टेड डूइंग इट वेरी लेट कंपेयर्ड टू अदर पीपल ना. Because I wasn't aware, like, क्योंकि टायर 3 में like there were no coding का हम्म. क्लब and no क्लब coding लब नहीं बैच। होते, यस. तो लोग ऐसा कुछ लीड कोड का नाम भी मैंने रेयर सुना होगा मेरे कॉलेज डेज में। हाँ, दैट इज वेरी ट्रू. टीयर थ्री में कुछ कोडिंग का होता ही नहीं है, एंड टीयर वन कॉलेजेस में आप देखो फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को पता होता है लीड कोड करना है, कोड फोर्सेस करना होता है, तो बहुत बड़ा एक इसीलिए डिसएडवांटेज हो जाता है.
यप। हाँ, टियर 3 वाले में ऐसा हो जाता है कि वो बस अपना एकेडमिक्स पे फ़ोकस कर लेते हैं एंड हाँ। फिर उनको इंटरव्यू में भी वही पूछा जाता है एंड दे आर हैप्पी विथ इट। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स देन आपको थोड़ा-सा ना बाहर आके दुनिया देखनी पड़ेगी कि चल क्या हुँ, रहा है एंड देन यू कैन ग्रैब द थिंग्स समहाउ। हुँ। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो फ्रॉम कॉलेज टू हिटाची वो जर्नी आपका कैसा था? लाइक हाउ डिड यू क्रैक हिटाची? Hitachi was an on-campus opportunity for me, and like there were other off-campus also which were paying more than Hitachi, but मुझे like पता नहीं हिताची पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि सारे ऑफर्स में से मैंने हिताची चूज़ कर लिया एंड दे वर ऑफरिंग इंटर्नशिप एंड आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप। सो वांटेड टू गो अहेड विथ हिताची ओनली एंड उसमें भी लाइक हमको लाइक वेरी decent level questions ही थे, let's say easy, medium level जैसे questions they ask in their online assessment। उसके बाद नॉर्मल लाइक इंटरव्यू होता है अपना टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन एचआर इंटरव्यू। सो इट्स नॉट लाइक हमारे जो एमएनसीज़ में प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज़ में होता है वैसा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं था। So it was simple only comparatively. Yeah, Hmm. and I think that's enough based on your preparation you're doing during your college days to clear वही the इट interview। कम्स बैक टू द सेम पॉइंट जो आपने बोला, टीयर 3 स्टूडेंट्स के लिए वही सर्विस बेस्ड कंपनी 2-4 कंपनी क्रैक करना बहुत बड़ी डील हो जाती है, तो एक्स्ट्रा कुछ करते भी नहीं है ज़्यादा बिकॉज़ दे आर काइंड ऑफ हैप्पी विद दैट ओनली। दे हैव अ Yeah, लिमिटेशन ऑन ड्रीमिंग ओनली। their mentality is that actually like उनको यस, ये मतलब उनको एक्चुअली यही डर होता है टियर 3 कॉलेज होने की वजह से कि क्या मुझे जॉब मिलेगी एंड इवन आई मिलेगी वाज या गुड इन एवरीथिंग स्टिल आई हैड दैट फियर। मुझे जो फर्स्ट हुँ, कंपनी मिली थी इट वाज एन डीएक्सी एंड हुँ, इट वाज पेइंग लाइक एवरीवन नोज व्हाट डीएक्सी पेज फॉर द फ्रेशर। हुँ, सो वही मुझे भी मिला था एंड आई वाज़ हैप्पी विद दैट। आई वाज़न्ट थिंकिंग ऑफ एनी अदर ऑफर आल्सो, सो आई वाज़ लाइक जस्ट हुँ, ब्लाइंडली अगर आप तीर छोड़ोगे कहीं तो जाके लगेगा काइंड ऑफ। लगेगा। I gave other interviews also and I could able to grab और एक अपॉर्च्युनिटी आपके पास है हाथ में, तो उसके बाद आप मतलब खुल के थोड़ा परफॉर्म करते हो। आपको टेंशन नहीं रहता कि यस, मुझे ये जॉब चाहिए काइंड ऑफ। हुँ। सो somehow it helped me to get all other opportunities। तो लाइक आफ्टर यू हैड जॉइंड इन हिताची लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर, क्योंकि एक तो जॉब भी होती है उसके साथ आपको प्रिपरेशन भी करना है अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए, एंड लाइक यू सेड आपने कॉलेज में ज्यादा नहीं किया था, तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल टुगेदर एक जॉब के साथ इतना सब प्रिपेयर करना? ओके। एक्चुअली मतलब इट्स लाइक कि मैं मेरे मम्मी के काफ़ी क्लोज़ हूँ, सो ऐसे उनसे डिस्कशन वगैरह होता रहता था कि मम्मी ऐसा-ऐसा भी लोगों को मिलता है। सो शी वाज़ लाइक कि तू क्यों नहीं ट्राई करती है? एंड इट वाज़ लाइक कोरोना पीरियड एंड मैं घर पे ही थी। सो यूजुअली मतलब ऐसा होता था कि मैं लिंक्डइन पे स्क्रॉल करती थी, लोगों को बढ़िया अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे थे। आई वाज़ लाइक कि ये कैसे मिलता है? फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या रहे हैं लोग कि हाँ, उनको इतना बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। सो आई स्लोली स्टार्टेड गोइंग थ्रू द लिंक्डइन एंड देन फिर ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज़ एनीवेज़ इट वाज़ वर्क फ्रॉम होम और जब आपका वर्क फ्रॉम होम हम्म, होता है, तो आप आपके 8 आवर्स आपके काम को डेडिकेट करने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा वक़्त टाइम बचता है। रहता है, यस। वर्क फ्रॉम होम वालों को वो एक एडवांटेज है कि आप कम्यूट या फिर आप रेडी होने में जो भी टाइम आपका जाता है, वो आप फ़ोकस कर सकते हो इन प्रिपेयरिंग। सो हम्म, फिर मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया देन आई लाइक पहला तो क्वेश्चन था कि रिसोर्सेस बिकॉज़ हम्म, लिटरली मेरा टायर 3 बैकग्राउंड था, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे इसमें, लोग सजेस्ट करते थे बट इट्स लाइक कि मैं जावा में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी लाइक हम्म, जावा। सो मेरा ऐसा था कि मेरे को यार जावा वाला ही बंदा चाहिए जो पढ़ाता हो। तो फिर ऐसा कि मैंने मेरी जावा सौरभ शुक्ला सर से की थी व्हेन आई वाज़ इन सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो मुझे उनकी टीचिंग बहुत बढ़िया लगी थी उस टाइम पे। सो फिर मैंने उनका एक कोर्स खरीद लिया था डेटा स्ट्रक्चर्स विद जावा वाला। हम्म, इसमें उन्होंने एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कैसे करते हैं, लाइक लिंक लिस्ट कैसे हम्म, बनाते हैं। कॉलेज में तो कवर होता है बट प्रैक्टिकली कोई इतना डिटेल में जाके इम्प्लीमेंट नहीं करके बताता है कि लिंक लिस्ट तो बता देगा आपको, कोई भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बता देगा, हम्म, ठीक है, चेंज है, ठीक है, हो गया। बट द थिंग इज़ कि उनके क्लासेस में वो चीज़ थोड़ा मेरा बेसिक फंडामेंटल अच्छा हो गया था। उसके हम्म, बाद फिर अगेन कि उससे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि बस लिंक लिस्ट बनाने से तो कुछ होने हाँ, नहीं। तो उसके बाद अगेन रिसोर्सेज़ क्या, तो मैंने बहुत से रिसोर्सेज़ यूट्यूब पे छाने। मेरा एक थॉट था कि यार मतलब पैसे देके कोई कोर्स मुझे खरीदना नहीं था। भैया मैं स्टार्टिंग से हम्म, लाइक सौरभ शुक्ला का जो कोर्स था वो एक्सेप्शनल था क्योंकि मेरे को उनका पढ़ाना बहुत ठीक लगा इसलिए मैंने ले लिया था। वो नॉमिनल प्राइस था बट ऐसा लोग जो बोलते हैं कि हम्म, 1 लाख का कोर्स है, 50,000 का कोर्स है एंड विल बट मुझे इसमें नहीं जाना था। आई वाज़ लाइक क्योंकि मैं हम्म, ट्राई ही कर रही थी, मेरा ऐसा नहीं कि मुझे फॉर श्योर हम्म, चाहिए।
उस टाइम पे। देन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू यूट्यूब अगेन। फिर ना थोड़े दिनों बाद एक नाम ऐसा बहुत छा रहा था कि स्ट्राइवर करो, स्ट्राइवर हाँ की शीट। हाँ, तभी वाज गेटिंग फेमस। यस। या सो फिर है कौन ये स्ट्राइवर? ऐसा हो गया था। फिर मैंने जाके कुछ वीडियोज़ देखे एंड आई वाज़ लाइक परफेक्ट। बस मेरे को अब हम्म। ये करना है। I हाँ। started through all of his video and I think तब ना उनका ऐसा प्रॉपर्ली फ्रेम्ड भी नहीं था जब मैंने चालू किया था कि ये यस। शीट, ये क्वेश्चन्स ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बस ऐसा ग्राफ की प्लेलिस्ट है, ट्रीज़ की हम्म। प्लेलिस्ट, ट्राई की प्लेलिस्ट है, ऐसा था उनका। देन मैंने ठीक है मतलब चालू करना है, कहीं से भी चालू करते हैं, तो मैंने फिर उनका अरेज़ लिया एंड द थिंग इज़ कि अरेज़ के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन्स भी थे, वाज़ लाइक चैलेंजिंग टू मी क्योंकि मैंने कभी उनको देखा ही नहीं था उस ढंग से, जिस ढंग से उन्होंने हम्म। किया है। लाइक और उन्होंने जितना सही बताया है ब्रूट फ़ोर्स अप्रोच और उसके बाद में ऑप्टिमल, हम इतना सोचते ही नहीं और इतना परफ़ेक्ट किसी ने दिया नहीं था। सो आई वाज़ लाइक कि नहीं ठीक हम्म। है, यही करना है क्योंकि मैं बहुत भटक के आई हूँ, मेरे को ये ठीक लगा तो मैं यही करूँगी एंड आई स्टार्टेड डूइंग एंड देन स्लोली लाइक ऐसा था कि मतलब कर तो रहे हो आप सब, बट आपका ये होता है कि आप समझ लो बट अगर आप कोई नया क्वेश्चन लेते हो, सो अगेन हम्म। को ये नहीं समझ में आता कि इस पे लगाना क्या है यार, मतलब मैं ट्री लगाऊँ, डीपी लगाऊँ, ट्राई हाँ, लगाऊँ। कौन सा? यस। सो दैट वाज़ ऑल्सो द इश्यू। तो फिर एक तो पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझता है, क्वेश्चन समझ जाए तो फिर क्या लगाना वो नहीं समझता और आप जो हम्म। लगाओगे फर्स्ट गो में फॉर श्योर वो ब्रूट फ़ोर्स ही होगा। सो पॉइंट आ जाता है कि बस यार मेरे को बस ब्रूट फ़ोर्स ही आ रहा है और मेरे को अब कुछ नहीं आ रहा है इसके आगे, तो अब मैं क्या करूँ? इट्स लाइक स्लोली फिर प्रैक्टिस से चीज़ें आगे बढ़ती गई एंड लाइक टू द डेट मतलब मेरे प्रिपरेशन जर्नी में मैंने ऐसा एक भी वीडियो नहीं छोड़ा है स्ट्राइवर का कि जो मैंने नहीं देखा हो एंड इट हैड हेल्प्ड मी अ लॉट टू लाइक गेन अ हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, चीज़ों को कैसे रिलेट करते हैं एंड देन ऐसा होता है कि एक टाइम पे आपको ऑप्टिमाइज़ अप्रोच भी आने लगते हैं, बट इट्स टू हम्म। टाइम टेकिंग। मतलब आप 1 डेढ़ घंटा बैठे और फिर आ गया है आपको बहुत सही वाला अप्रोच, बट फिर टाइम बाउंड वाला इश्यू आ जाता है कि नहीं, इंटरव्यूअर तो 30 मिनट ही रुकेगा या 45 मिनट्स। वेट नहीं करेगा। यस। सो अगेन फिर मैंने खुद को टाइम बाउंड करना चालू किया, मैंने टाइमर लगा के क्वेश्चंस देना चालू किया। मैंने मतलब मेरे 3-4 पीयर्स रहे हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट टू ग्रो क्योंकि जो मेरे मैं रिकर्शन में थोड़ा वीक थी, बट मेरा ग्राफ बहुत सही था। बट हम्म। जो प्रॉपर रिकर्शन वाले प्रॉब्लम होते हैं, जिस पे आपको आगे जाके डीपी लगाना पड़ता है, तो उसमें मैं थोड़ा-सा वीक थी। सो जो मेरे पीयर कोडर्स थे, वो उसमें स्ट्रॉन्ग थे, बट इन टॉपिक्स में वीक थे, ग्राफ में, ट्राई में। हम्म। वाज़ माय फेवरेट टॉपिक, इज़ माय फेवरेट टॉपिक। सो फिर मैं उनको इस उसमें हेल्प कर देती थी, वो मुझे इसमें हेल्प कर देते थे, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे या टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन देखो कि मतलब सामने वाले बंदे ने कैसे सॉल्व किया है। बिकॉज़ जिस हम्म। एक्सप्रेशन अच्छा है, आपको एक रहता है ना कि यार ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, दोनों ने तो साथ में ही किया था। यस। चालू मतलब तो फिर अगर कोई बंदा उसको किसी और तरीके से करता है, मतलब कोई बंदा उसको हैश मैप लगा के सॉल्व कर दे रहा है और आप इधर लंबा-चौड़ा कुछ लिख रहे हो, सो देन तब सोचोगे। हाँ। तो आपको फिर पता लगता है कि नहीं, कुछ तो गलती हो रही है एंड यू हैव समवन टू डिस्कस हम्म। लाइक गलत हो जाते हो क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन हो सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे हो सकता है या फिर आपके कोडिंग स्टैंडर्ड्स पे डिस्कशन हो सकता है। सो पीयर कोडिंग हेल्प्ड मी अ लॉट देन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक इंटरव्यूज़। कुछ प्रैम पे हम्म। दी एंड हमारे लिंक्डइन पे भी आता है कि लाइक कुछ लोग फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक किसी का वीकेंड या। पे तो बोल टेक योर मॉक इंटरव्यूज़ तो वो लोग अपने को लीड को लिंक्डइन प्रोफाइल माँगते हैं बिकॉज़ देयर आल्सो टाइम इज़ लाइक वेरी वर्दी। सो उनको वेस्ट नहीं करना है जो लोग ऐसे ही टाइम पास करने वाले हैं। तो वो आप हम्म। कोड प्रोफाइल माँगते हैं, उनको वर्थ लगा आपसे बात करना तो देन दे विल टेक योर मॉक इंटरव्यू। सो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, बहुत से लोगों से बात की है। सो इट इवेंचुअली फ्रेम्ड मी टू गिव एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू स्लोली लाइक धीरे-धीरे क्योंकि सब लोग अलग-अलग चीज़ें बताते हैं बट एट लास्ट यू नो व्हाट इज़ द मिस्टेक क्योंकि मिस्टेक या। वही हो। हम्म। सो इवेंचुअली ऐसा था जर्नी पूरा। एंड आई गेस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला पीयर ग्रुप वाला, क्योंकि अकेले आप बीएससी करोगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो आपके पास 3-4 दोस्त है, आप compete भी एग्ज़ैक्टली। कर सकते हो, आपने साथ में कॉन्टेस्ट दिया, you'll be like इसकी मेरे से बेटर रैंक कैसे आई, मैं अगली बार इससे बेटर लाऊंगा। ये है थोड़ा-सा ना ना? जेलस वाला भी सीन आता है कभी-कभी कि नहीं यार मतलब ये तो मेरे साथ ही पढ़ता था, इसको ज़्यादा कैसे मिल गया तो मेरे को भी हाँ। चाहिए था जैसा ऐसा नहीं है जेलसी इन द सेंस इज़ कि आप टुगेदर ग्रो कर रहे हो बट एक थोड़ा तो हम्म। रहता है कि मतलब वो बंदा भी आपको हेल्प कर देगा बिकॉज़ उसको भी हम्म। ग्रो होना है, आपको भी ग्रो होना है। यस। तो वो थोड़ा रहता है कॉम्पिटिशन रही तो आप थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हो उस केस में हम्म। एंड द थिंग इज़ कि मेरा जो जैसे कि मैंने कहा कि फुल टाइम के साथ मैंने
डीएसए जर्नी कंटिन्यू की है। हुँ, सो इसमें ऐसा होता है कि मैं यूजुअली नॉन वर्किंग आवर्स मतलब रात में या फिर सुबह-सुबह, जो मेरा एक पीयर था वो सुबह 4 हाँ, बज के कोडिंग करता था। सो डैम! आई वाज़ गेटिंग मोटिवेटेड कि कितना डेडिकेटेड है ये बंदा कि सुबह सही 4 उठ में। के 4 बजे उठ के ये कोडिंग करता है। सो आई वाज़ आल्सो वेकिंग अप विथ हिम 4 एंड हुँ, 6 से 7 हम दोनों पीयर कोडिंग करते थे। सो इट्स लाइक वो 3 घंटे काफ़ी होते थे आपको एक नई चीज़ समझने में, सीखने में। समटाइम्स लाइक मैंने पीयर्स बहुत बदले हैं क्योंकि बहुत से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, बट मैंने मेरी हुँ। कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी इसलिए मेरे को पीयर बदलने पड़े। सो कुछ ऐसे थे जो हुँ। रात में थे तो फिर हम 9 बजे से 1 बज जाता था। तो ये ऐसा टाइम है ना जब आपको अगर कोई बात करने के लिए नहीं हो तो बंदा सो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा। हुँ। कोई तो आप ये भी होना चाहिए ना मोटिवेट करते रहेगा आपको, वरना वही है बहुत लोग जॉब में आते हैं एंड फिर उस वाले फ्लो में आ जाते हैं कि बस जॉब है, पैसे है, खा पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो मोटिवेशन हाँ, भी एक होनी चाहिए। ये तो एक्चुअली सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी था बट मेरा ऐसा था कि मतलब यार सब बढ़िया ही चल रहा है, ये टाइम जो है ये मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ये खाली जा रहा है मेरे लिए। लाइक सुबह का हो या रात का मैं क्या ही करूँगी, मैं कोई सीरीज़ देख लूँगी, मूवी देख लूँगी या सो जाऊँगी, दूसरा क्या ही करूँगी। सो इट वाज़ लाइक कि ठीक है, मेरा तो एक इन्वेस्टमेंट था, कुछ मिला, मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, ऐसा था। हुँ, राइट एंड ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपकी मॉम ने आपको मोटिवेट किया बिकॉज़ योर पेरेंट्स विल ऑलवेज़ बी देयर। आप सोचो कि यार इसका 1 करोड़ का पैकेज लगेगा, पेरेंट्स विल बी लाइक तेरा क्यों नहीं लग रहा है? तुमसे क्यों नहीं हो नहीं, पा रहा है? कुछ नहीं था, लाइक उनका ऐसा था कि मतलब तेरे को टाइम है, तो तू बस हाँ, ट्राई कर लेना, क्या दिक्कत है, यस। मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि उनको भी पता था कि कॉलेज का लेवल क्या है और यहाँ से आप कितना भी अच्छा कर लो लाइक बहुत से लोग होंगे मेरे जैसे जो टायर 3 से और बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं बट उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रही है। तो इट्स वेरी ट्रू। पेरेंट्स आर ऑल्सो अवेयर कि कॉलेज का नेम टैग की वजह से भी बहुत फ़र्क हुँ, पड़ता है क्योंकि आपके क्लासमेट्स जो होते हैं, उनसे अगर कंपेयर करते हो तो आप तो अच्छे ही हो। बट द थिंग इज़ अगर हुँ, आप बाहर की दुनिया से कंपेयर करोगे, तो उनको भी पता है कि कॉलेज का हाँ। डिफरेंस है। हुँ, वो तो है एंड दूसरी चीज़ है कि आप यू हैव टू बिलीव कि यू कैन एक मेंटालिटी वाली बात जो आपने बोली ना, टियर 3 के स्टूडेंट्स को मेंटालिटी का बहुत इश्यू होता है। उनको एग्ज़ैक्टली। यही नहीं पता होता कि मैं कर सकता हूँ। सो मेनी पीपल गूगल वगैरह की ऐसी कंपनीज़ में अप्लाई ही नहीं करते हैं। दे लाइक हाँ, इसमें तो ट्रू। मेरा होगा ही नहीं, है ना? नहीं हाँ, एक्चुअली ये फ़ियर तो रहता है एंड रीज़न बीइंग कि उनको इतना अवेयरनेस ही नहीं दिया जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग कि उनको कुछ ऐसा करना भी चाहिए या फिर वो कुछ कर सकते हैं। एंड अगर देखा जाए ना तो आपको माइंड फ्लक्चुएट करने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे। क्योंकि लोगों का कैसा है ठीक है यार डेव कर लेना, एमएल कर लेना, रोबोटिक्स में चले आ या फिर नॉन आईटी जॉब में कोई प्रोडक्ट मैनेजर के साइड घुस जाता है वैसे ही। तो ऐसा लोगों का थोड़ा फिक्स हो जाता है कि इसमें थोड़ी कम मेहनत है, पैसे ज़्यादा है, कोडिंग जितना टेंशन नहीं है, इतना सोचना नहीं पड़ता, बड़े-बड़े कोड नहीं लिखने पड़ते। सो दे आर लाइक हाँ, हम हमारा फ्यूचर सेव कर ले रहे हैं, कौन ज़िंदगी भर कोडिंग करके टेंशन पालेगा। तो ऐसी मेंटालिटी हो जाती है लोगों की और उनको एक्चुअली मतलब इतना उन्होंने पहले से कोडिंग किया हुआ भी नहीं रहता है, तो उनको वही जॉब अच्छा लगता है। 6 महीने आप अगर काम कर रहे हो किसी कंपनी में और आपने कोडिंग ना की हो, तो फिर आप अगर स्विच भी करोगे ना, तो आप ऐसी ही कंपनी देखोगे जिसमें कोडिंग ना हो। कोडिंग ना हो। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। So, speaking of applying, a company like Microsoft, Google, they're very selective about what kind of people they even shortlist for the interview. तो हाँ, DSA you did, but आपने resume में ऐसा क्या work किया कि कि it was able to get shortlisted? Like what all you worked on for your resume? ओके। सो एक्चुअली आई कनेक्टेड विद वन ऑफ द टॉप मेट टू अनदर पर्सन एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था लाइक मैंने बहुत से लोगों से रिज्यूम की भी गाइडेंस ली, अपना रिज्यूम शेयर किया बिकॉज़ एटीएस फ्रेंडली तो होना ही चाहिए आजकल सबको ही पता हम्म है। तो एटीएस फ्रेंडली था मेरा रिज्यूम, उसके बाद में सिंगल पेज होना चाहिए, उसमें आप इम्पैक्ट शो करो आपने क्या किया है। एंड द थिंग इज़ कि लोग ना मतलब एड्रेस, मैरिटल स्टेटस ये सब बहुत कुछ डाल देते हैं जिसकी हॉबीज ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट ये सब हाँ, हॉबीज़ डाल देते हैं। आई थिंक हॉबीज़ ठीक है, मतलब आप कुछ पर्सनल भी कुछ रख सकते हो बट द थिंग इज़ कि नॉन वर्दी थिंग्स आप मत रखो। रीज़न बीइंग कि जो एचआर है वो 10 सेकंड माइट बी आपका रिज़्यूम देखता हो हम्म तो उसको वो अट्रैक्ट करे। मतलब आप बोल्ड में लिखो कुछ चीज़ें कि वो पढ़ते ही उसको लगे कि हाँ, ठीक है, इसको अपॉर्च्युनिटी तो देनी चाहिए इंटरव्यू की। सो आई थिंक हम्म दैट दैट इज़ मस्ट नीडेड कि एटीएस हो, इम्पैक्टफुल हो, क्लियर हो, फ़ॉन्ट ठीक हो। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंगल पेज ही ठीक है क्योंकि अगर आपका 2 पेज हो रहा है तो आपने बहुत सारी माइट भी फालतू की चीज़ें लिख रखी हो और लिखिए अगर कुछ भी लिख रखी हो तो एचआर को उतना टाइम नहीं है पढ़ने को। सो बेटर राइट है कि आप ऐसा ही रिज़्यूम बनाओ जो अट्रैक्ट करे।
एंड हम्म। मोर स्पेसिफिकली आप लिंक्डइन, लीड कोड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखो अच्छे से, जो कि बहुत लाइक प्रॉपर्ली विजिबल हो रिज्यूम में, कि एचआर को दिक्कत ना हो। उस वजह से एटलीस्ट आप रिजेक्ट ना हो। Right. By the way, guys, Riddhi also has a top mate. So if any one of you want any particular guidance for any of your particular situation, you can reach out to her on her top mate. I'll give a link in the description and screen पे भी appear आएगा. So you can reach out to her if you want on top mate as well. So Riddhi, the next thing I want to ask you is coming from a tier 3 college, जो आपने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है opportunities ही नहीं मिलती है ना. आप सब प्रिपेयर कर लो, आप डीएसए कर लो, रेज्यूमे कर लो, अपॉर्चुनिटी मिलना ही एक another hurdle in and of itself. तो Yeah. माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कैसे, लाइक हाउ डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिंक्डइन और लीड कोड प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एचआर अगर है तो वो आपके लिंक्डइन और लीड कोड प्रोफाइल पे ज़रूर जाएगा। तो करेक्ट। बिल्ड दैट टू, और वो विद टाइम बिल्ड होंगे, ऐसा नहीं कि रातों-रात बन गए हैं। सो हम्म। उसको टाइम लगेगा, आप अच्छे से बना लो, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। देन वर्क ऑन योर रिज़्यूम, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट लोग उसको 1-2 घंटे देके छोड़ देते हैं, डोंट डू दैट। अच्छे से 1 वीक दो, पूरा-पूरा दिन देने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटे 1 वीक के दे दो एंड योर रिज़्यूम विल बी गुड। और जो भी आपको रिव्यूज़ दे रहे हैं लोग, आप मतलब सबका रिव्यू मत लो। द थिंग इज़, आपको जो बराबर रिव्यूज़ लगते हैं, उनको आप डालो उस हम्म। रिज़्यूम में, उनको आप इन प्रैक्टिस लो एंड रिज़्यूम इज़ डन। एंड मेरा ऐसा था कि मैंने रिज़्यूम माइक्रोसॉफ्ट में जो काम करते हैं उन्हीं से रिव्यू किया था। मतलब मैंने ओह बहुत और नाइस। कंपनी से भी किया था, माइक्रोसॉफ्ट वालों से भी किया था, सो इट वाज़ लाइक गुड फॉर देम आल्सो। फिर अपॉर्च्युनिटी मिली कैसे? आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने आज तक माइक्रोसॉफ्ट में 50 रेफरल लगवाए होंगे। सो मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, सो लोग हेल्प कर देते थे, रेफरल लगवाने में क्या जाता है, लाइक दे आर आल्सो बेनिफिटिंग, वी आर आल्सो बेनिफिटिंग। हम्म। विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, बट जो यस। भी रेफर दे रहे और ले रहे हैं। पर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा ऐसे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आजकल सभी रेफर कर देते हैं, तो हम्म। ऐसे रेफरल से हो जाएगा। सो माय फ्रेंड वाज़ गिविंग एन इंटरव्यू एट माइक्रोसॉफ्ट, और मैंने उनको बोला कि आप जिस एचआर आपके कॉन्टैक्ट में हैं, आप उनको बस मेरा रिज्यूम दे दीजिए। सो फिर या। मैंने वो शेयर कर दिया था एंड देन लाइक मेरा ऑनलाइन असेसमेंट हुआ। बट ऑनलाइन असेसमेंट के बाद फिर मुझे लाइक उनका हायरिंग शायद स्टॉप हो गया था। बट हम्म। फिर आई यूज्ड टू रीच आउट टू दैट एचआर कि मतलब क्या हो रहा है, कब क्या चांसेस है फिर से हायरिंग चालू होने के। एंड उन्होंने बोला कि फिलहाल मतलब वो जिस टीम के लिए हायर कर रहे हैं उस टीम में तो नहीं है, वो उनके फ्रेंड्स में सर्कुलेट हम्म। कर मेरे रिज्यूम को। बट अभी मुझे ये पता नहीं कि माइट बी लाइक रेफरल तो नहीं था, डायरेक्ट ओपनिंग से हो सकता है, या फिर वो जो मैंने अभी बताया कि वो एचआर के फ्रेंड्स किसी ने अगर दिया हो कॉल, हम्म। तो एक दिन कॉल आ जाता है कि क्या आप माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दोगे। आई थिंक वो था ट्यूसडे एंड इंटरव्यू था फ्राइडे को। वाज लाइक कि मतलब ठीक है, इतना जल्दी है, बट हम्म। प्रैक्टिस वही रखी है, सो मैंने हाँ बोल दिया एंड या आई गॉट अपॉर्चुनिटी। नाइस। आई गेस लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू सेड, रेफरल तो सब लोग लेते हैं, बट दिस काइंड ऑफ थिंग कि अगर कोई एम्प्लॉय आपका रेज्यूमे एचआर को भेज रहा है, उसके लिए आपकी एक अच्छी खासी बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। मतलब यू डोंट नीड टू जस्ट सेंड कनेक्शन, बट यू नीड टू हैव थोड़ा सा टॉक दैट द अदर पर्सन नोज कि यू हैव अ गुड प्रोफाइल, यू हैव समथिंग आई गुड, थिंक राइट? लोग आपको रेफर भी क्यों करेंगे जब तक आपकी प्रोफाइल अच्छी ना हो, क्योंकि उनको अच्छी नहीं पता है। है कि एचआर भी रिजेक्ट ही कर देगा। अगर आपकी लीड हम्म। कोड, और लीड कोड मोर स्पेसिफिकली लिंक्डइन पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट स्टिल अगर लिंक्डइन उस पर एक ऐड ऑन हो जाता है कि दोनों भी अच्छा है, तो मतलब आपको रेफरल तो मिल ही जाएगा। अभी वो डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन कि जिससे आप माँग रहे हो, वो माइट बी क्वाइट बिज़ी हो आपको रेफरल देने के लिए, हम्म। बट आपके पोटेंशियल या फिर कैलिबर की वजह से तो आप रिजेक्ट नहीं होंगे। आप हम्म। एलिजिबल हो रेफरल के। It's very true. So after you were there for the interview, what happened in the interview? Like interview experience कैसा था आपका? ओके, सो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे 3 राउंड सेम डे शेड्यूल हुए थे, फ्राइडे, हम्म। एंड आई थिंक वन वाज़ टूक बाय एसडी2 एंड लेटर वाज़ टूक बाय सम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एंड उसमें ऐसा था कि मुझे डीएसए पूछा गया था, फर्स्ट 2 राउंड्स मेरे डीएसए के थे एंड नेक्स्ट वाज़ ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। फर्स्ट 2 राउंड्स में मुझे ट्रीज़ एंड डीपी के अराउंड क्वेश्चंस थे। एंड हम्म। सिस्टम डिज़ाइन मतलब प्रॉपर ऐसा डिज़ाइन करके नहीं बताना था, मुझे एक वर्किंग अप्रोच देनी थी और वो ऑप्टिमाइज़ थी। सो लाइक माय इंटरव्यू वाज़ हैप्पी इन सिस्टम डिज़ाइन राउंड आल्सो। और फिर मुझे लाइक इनका प्रोसेस अच्छा है, लाइक दे जस्ट टेल यू कि आप आपका इंटरव्यू कैसे गया, जस्ट विद इन हाफ ऑवर एन हम्म। आवर। सो यू विल हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी टू गिव नेक्स्ट इंटरव्यू कि ठीक है, मतलब
कुछ तो चांस बनता है होने राइट। का। सो दैट वाज़ डन विथ मी कि मेरे तीनों इंटरव्यू होने के बाद मुझे बताया गया कि आपके तीनों इंटरव्यू बहुत अच्छे गए हैं एंड यू विल बी हैविंग अ नेक्स्ट राउंड शेड्यूल्ड और फिर मेरा नेक्स्ट वीक में आई थिंक अराउंड थर्सडे मेरा एज़ अप्रोप्रिएट राउंड हुआ। उसमें लाइक कंपनी रिलेटेड एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड थोड़ा-सा माइनर कोडिंग का पार्ट था, कॉन्सेप्चुअल कोडिंग थी। हुँ, So yeah, this was the experience and then later HR negotiation. हुँ। तो आई गेस इट वाज़ मीडियम टू हार्ड यू कैन से लाइक जो डीएसए था माइक्रोसॉफ्ट का। या डीएस से एक्चुअली जो क्वेश्चंस थे वो मेरे लिए तो जो फर्स्ट राउंड में थे आई थिंक इट वाज प्रोबेबली टू 3 क्वेश्चंस तो एक तो मेरे लिए सीन था, एक कंप्लीटली अनसीन था और मुझे वो कहीं मिला भी नहीं बाद में भी एंड माइट बी उसमें थोड़ा ट्वीक हो और वो कहीं अवेलेबल भी हो बट मुझे तो हुँ, नहीं दिखा था। एंड जो डीपी का क्वेश्चन था वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बट उसमें जो ट्वीक था ना वो बड़ा मज़ेदार था क्योंकि मतलब जिसने प्रोबेबली उस अप्रोच को सारी तरीके से समझा है उस क्वेश्चन के लाइक मेमोराइज़ेशन या फिर टेबुलेशन और रिकर्शन जिसको सब पता है उसको पता है कि ये ट्वीक करके वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हुँ, थोड़ा-सा ही ट्वीक था बट द थिंग इज़ कि जो बंदा रट के आता है उसको तो पक्का नहीं आता। नहीं होगा। हुँ, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में समव्हाट ट्विक था एंड उसके बाद हमारा डिस्कशन अराउंड लाइक प्रोजेक्ट्स आई डू इन हिताची एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स इस पर चल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। राइट, राइट। आई थिंक दैट्स व्हाई इवन आई सजेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड दिस इज़ व्हाई क्योंकि लाइक इंटरव्यू में इट्स नॉट यू नॉट गोइंग टू सी द सेम क्वेश्चन ऑलवेज राइट लीड कोड में बहुत आपका लक अच्छा हो तभी हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन मिले मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑलवेज बी अ ट्वीक तो अगर आप कोई अप्रोच रट ले रहे हो या आप समझ नहीं रहे हो बहुत लोग डिस्कस सेक्शन से अप्रोच रट लेते हैं कि ये क्वेश्चन या ऐसे होगा एंड इफ देयर इज एंड सिंगल टीक नहीं होगा आपसे। मोर देन दिस तो मेरा ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था। तो ऑनलाइन असेसमेंट में 70 मिनट्स में मुझे 3 क्वेश्चंस करने थे डीएसए के सो इट वाज़ ऑल अनसीन फॉर मी। सो ये तो बहुत हम्म। बात की बात हो गई। पहले आप ये क्लियर करो। ओए ही नहीं कर पाओगे। वो एक ओए लाइक करोगे तब इंटरव्यू तक जाओगे। इंटरव्यू में थोड़ा आपको वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन या फिर स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स पर क्वेश्चन मिल जाएगा। बट आपको ओए में तो कोई बचाने नहीं वाला है। ओए में तो ओए आपको तो लोग कभी बनाते होंगे ना क्वेश्चन खुद से। एग्ज़ैक्टली आई हम्म। थिंक क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चंस मतलब मैंने जिस तरीके से मैंने 1000 प्लस क्वेश्चंस किए हैं लीड कोड पे एंड जीएफजी पे 500 प्लस किए हैं मैंने। तो इट्स लाइक कि वाओ। अगर मैंने नहीं देखा है वो क्वेश्चंस सो आई वाज़ तो लाइक फिर कि नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर लो कि ये बोल पाओ कि एक्चुअली है कि मतलब मैं कॉन्फिडेंट तो हो गई थी 500 तक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद बट ये रिसेशन के चक्कर में हायरिंग ही फ्रीज थी एंड हम्म। मेरा ऐसा था कि अगर मैं इतनी मेहनत करके अगर अभी छोड़ूं तो मेरे को इसका फल तो कुछ मिला है नहीं अभी तक नहीं। तो ये हाँ। पूरी वेस्ट हो जाएगी सो सिर्फ चलते रहने दो और चलते रहने दो के चक्कर में और 500 प्रॉब्लम्स हो गए मिलने तक हाँ, आई थिंक ये ऐसी चीज है कि द मोर यू डू द बेटर इसमें कुछ वो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर लिया जितने करो आप ही का फायदा होने वाला है आप राइट। ही का फ़ायदा होगा। बट द थिंग इज़ आप एक लेवल के बाद कंफर्टेबल हो जाते हो और आप में कोई भी कमतरता नहीं है कि आप हम्म। नहीं दे पा रहे हो इंटरव्यू। आपका अभी आपको यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, जॉब ही नहीं है मार्केट में तो कहाँ से मिलेगी? राइट, राइट, राइट। ओके, तो आई गेस हमने टेक्निकल काफ़ी बातें कर ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज़ थोड़ा नॉन टेक्निकल एंड दिस इज़ अगेन थोड़ा-सा रिलेटेड टू द माइंडसेट मेंटालिटी। तो हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मोटिवेशन डाउन हो जाता है, लाइक यू सेड मार्केट खराब है, अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। बहुत लोग तो डीएसए करते-करते ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। तो हाउ डू यू फील इज़ अ गुड वे टू स्टे मोटिवेटेड? आई थिंक जिसको पैसों से प्यार है, उसने लीड कोड कंपेंसेशन वाले देखते टैब पे रहो। जाके एक बार स्क्रॉल कर लो। जिसको एक्चुअली कोडिंग से प्यार है, वो बंदा तो छोड़ेगा नहीं। एंड हुँ, जिसको अभी मेरा तो ऐसा था कि मैंने जैसे मैंने बोला कि मैंने ये मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को चाहिए, मैंने जस्ट यूजुअली स्टार्ट कर दिया, स्लोली आई स्टार्टेड गेनिंग इंटरेस्ट। बट थोड़े टाइम बाद ऐसा हो गया यार इतनी मेहनत कर ली तो कुछ तो चाहिए। लाइक ये मैंने हुँ, डीएसए किया है, अगर मैं किसी सर्विस बेस में स्विच करूँ तो मैं कहीं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ इसको और मैंने जो पढ़ाई की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हुँ। सो मेरा ऐसा था कि जब तक इसके लिए कुछ मिल नहीं जाता जस्ट कीप कंटिन्यूइंग इट अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। Hmm, right, right. So, on a final note, towards the end of the video, I just want to ask what final advice do you have for people watching
who are also from tier 3 colleges are working at company that they don't want, or want to switch to a better company? What advice do you have for people like that? Actually, my advice will be like, if you realize, so real competition is very low. Okay? Because people get distracted very easily. I was in this journey because I started around August 2022, और लाइक आई थिंक दिसंबर 2022 तक आई वाज़न्ट सीरियस कि मतलब मेरे को लगता ही नहीं था कि डीएसए करने से भी कुछ होता है, इतना कॉन्फिडेंस मैं गेन ही नहीं कर पा रही थी और फिर कहाँ से करूँ, रिसोर्स फाइंड आउट करना। मैंने जीएफजी वगैरह तो आई थिंक 2023 में ही चालू किया, लीड कोड पास टू दैट। सो सॉरी, फ्यूचर टू दैट, मतलब बाद में किया मैंने उसके बाद। बट ऐसा है कि like if you realize, right, that real competition is low and because people are getting distracted and won't Hmm. remain consistent with DSA and shift to other things like dev में कर लेंगे या फिर कुछ भी उनको जो चाहिए जो पसंद है उसमें कर लेंगे। बट अगर आप डीएसए करते हो, आप कंसिस्टेंट हो ना, तो आपको उसका फल पक्का मिलेगा, सम और अदर डे, सम हाउ, आई डोंट नो हाउ, बट यू विल गेट इट। Hmm. सो कीप डूइंग, कीप कंसिस्टेंट, क्योंकि लोग ना डीएसए में अगर कुछ भी, किसी ने भी अगर डीएसए में पोस्ट डाले ना, बंदा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बात पहले करेगा, क्योंकि आप कितने भी डम इनफ क्यों ना हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो आप इवेंचुअली उतना कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो कि Hmm. आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आने दो, सॉल्व कर। Hmm. That's very true. That's very true. That's some great advice right there. Okay, so I guess that covers pretty much everything about Riddhi's journey to Microsoft. I think we've covered every part of it. And if anyone wants to talk to Riddhi or connect with Riddhi or take help from her, I'll give her LinkedIn in the description as well. You guys can connect with her from there and follow with her from there. So thanks a lot, Riddhi, for taking out the time and coming on my channel to share all this journey. I really hope it will help a lot of students. Thank you. थैंक्स आशीष।